السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ عزیز طلباء و طالبات، چلیے ایک بار پھر سے آن لائن کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ تو بچوں، ہماری گزشتہ کلاس میں لاسٹ میں ہم جو کلاس پڑھے وہ کون سی پڑھے تھے ہم؟ وہ وجے نگر اور بہمنی سلطنت ہے نا، وجے نگر اور بہمنی سلطنت۔ تو وجے نگر میں آنے والے 4 خاندانوں کے بارے میں ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ یہ پہلے ہی بولی ہوں کہ یہ باب بہت ہی بڑا ہے، اس لیے ہم اس کو 3 حصوں میں اس کا مطالعہ کریں گے، پڑھائی کریں گے۔ تو پہلا جو ہے ہم وجے نگر سلطنت کے بارے میں پڑھے۔ آج بچوں ہم بہمنی سلاطین کے بارے میں اور اس کے بعد بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد دکن میں وجود میں آنے والے 5 سلطنتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو بچوں آج ہمارا عنوان، آج ہمارا ٹاپک کون سا ہے؟ بہمنی سلطنت۔ تو چلیے دیکھتے ہیں بہمنی سلطنت کی بنیاد کس نے ڈالی، اس میں آنے والے اہم حکمران کون ہیں، ان کا عروج اور زوال، پھر اس کے بعد میں دکن میں وجود میں آنے والے 5 اہم سلطنتیں کون کون سی ہیں۔ تو بچوں سب سے پہلے جیسا کہ یہاں پہ دکھ رہا ہے کہ میپ میں بدر اور گلبرگہ کو جو صدر مقام بناتے ہوئے جو حکومت چلی ہے وہ کون سی ہے؟ بہمن سلطنت ہے۔ تو سلطان محمد بن تغلق نے 1342 عیسوی میں ظفر خان کو جنوبی ہند کا صوبیدار مقرر کیا تھا۔ کس نے؟ دہلی کے سلطان تغلق خاندان سے تعلق رکھنے والے اہم حکمران محمد بن تغلق نے 1342 عیسوی میں ظفر خان کو جنوبی ہند کا صوبیدار مقرر کیا۔ اس نے دکن کے سرداروں کو اپنے ساتھ ملا کر مرکز سے علیحدگی اختیار کی۔ کس نے؟ ظفر خان نے۔ اور 1347 عیسوی میں علاء الدین حسن گنگو بہمن شاہ کا لقب اختیار کرتے ہوئے ایک آزاد بہمنی سلطنت کی بنیاد ڈالی، اور یہی سلطنت کیا کہلاتی ہے بچوں؟ بہمن سلطنت کہلاتی ہے۔ تو بچوں اس کا بانی کون ہوگا؟ بہمن سلطنت کے بانی علاء الدین حسن گنگو بہمن شاہ۔ تو اس کو گنگو بہمن شاہ کس طرح سے نام یا لقب ملا ہے؟ چلیے بچوں یہ دیکھتے ہیں کہ تو بہمنی سلطنت کا بانی کون تھا؟ علاء الدین حسن گنگو بہمن شاہ۔ علاء الدین حسن گنگو بہمن شاہ بہمنی سلطنت کا بانی تھا۔ اس کو حسن گنگو کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ وہ دہلی سلطنت کے سلطان محمد بن تغلق کے وقت میں ظفر خان کے خطاب سے معروف تھا۔ یعنی علاء الدین جو نام کا جو اس کے دربار کا جو ایک وزیر تھا، پھر اس کو اس نے وزیر اعظم کا بھی عہدہ دیا ہے نا۔ تو محمد بن تغلق کے وقت میں اس کو اس نے ظفر خان کے خطاب سے نوازا تھا۔ کس کو؟ علاء الدین کو۔ تو تاریخ دان کون؟ محمد قاسم نہل فرشتہ، اس کا خیال ہے کہ حسن پیدائشی سے شاید ایک افغان تھا جو دہلی کے ایک مشہور نجومی ایک برہمن گنگادھر شاستری، جو معروف جو ہے اس کو گنگو کرتے، اس کا وہ خادم بھی تھا، اس کے پاس میں رہا کرتا تھا۔ تو حسن گنگو نے سلطان محمد بن تغلق کے تخت ایک امیر کے طور پر خدمت کا آغاز کیا۔ اس نے صوبیدار بننے کے بعد ظفر خان کا خطاب حاصل کیا۔ کس نے؟ علاء الدین حسن نے۔ تو گنگو شاستری کے یا گنگادھر شاستری کے پاس میں رہنے کی وجہ سے اس کو گنگو بھی یہاں پہ لقب مل گیا۔ تو یہ علاء الدین حسن اب علاء الدین حسن گنگو بہمن شاہ کے نام سے مشہور ہوا، جس نے جو ہے بہمنی سلطنت کی بنیاد ڈالی ہے۔ تو 1347 عیسوی میں اس نے دولت آباد میں فوج کا امیر اس کو بنا دیا گیا۔ اگست 1347 عیسوی میں ناصر الدین اسماعیل شاہ، جسے 1345 میں دولت آباد کے تخت پر دکن کے باغی عمرہ نے بٹھایا تھا، اس نے حسن گنگو کے حق میں بادشاہ سے دستبردار اس کو بادشاہ عطا کیے، اور احسن آباد یعنی آپ کا جو گلبرگہ ہے نا، اس کو پہلے نام کیا تھا؟ احسن آباد تھا، کو اپنی بہمنی سلطنت کا صدر مقام بنایا۔ کس نے؟ علاء الدین حسن گنگو بہمن شاہ نے۔ علاء الدین حسن نے، جس کو گنگو اور اس کے بعد میں ظفر خان کا بھی نام ملا ہے، تو اس کو پوری طرح سے تاریخ میں اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ علاء الدین حسن
یا اس کو حسن ظفر خان بھی کہتے ہیں یا گنگو بہمن شاہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو علاء الدین حسن گنگو بہمن شاہ نے 1347 میں گلبرگہ کو اپنا صدر مقام بناتے ہوئے بہمنی سلطنت کا آغاز کیا ہے۔ تو اس کا پایا تخت، اس کا دارالحکومت کون سا تھا بچوں؟ گلبرگہ۔ کون سا تھا؟ گلبرگہ۔ اس سلطنت کا آغاز کب ہوا، اس کی بنیاد کب رکھی علاء الدین حسن گنگو بہمن شاہ نے؟ 1347 میں۔ تو پہلے علاء الدین حسن گنگو بہمن شاہ کے بعد سے 8 سلطانوں نے جو ہے گلبرگہ سے اپنی حکومت کی، لیکن شہاب الدین احمد کے زمانے میں وہ بیدر منتقل ہوا اور آخر تک یعنی 1499 میں ان کا زوال شروع ہوتا، تو اس تک جو ہے بیدر ہی ان کا صدر مقام یا راجدھانی رہی۔ لیکن جب اس سلطنت کا آغاز ہوا تھا، ان کا پہلا پایا تخت کون سا تھا بچوں؟ گلبرگہ تھا۔ پھر اس گلبرگہ کے بعد میں کب شہاب الدین احمد کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، گلبرگہ سے بچوں کہاں پر منتقل ہو جاتے ہیں؟ بیدر۔ ان کا پایا تخت کون سا بنتا؟ بیدر۔ تو مین پوائنٹ یہاں پہ کون کون سے ہو گئے بھی؟ بہمنی سلطنت کی بنیاد ظفر خان، یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حسن ظفر خان کو علاء الدین حسن گنگو بہمن شاہ کہتے ہیں، جس نے 1347 میں بہمن سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ تو ان کا پہلا صدر مقام گلبرگہ تھا، پھر اس کے بعد میں بیدر بنا ہے۔ تو بہمنی سلاطین نے دکن میں زراعت، تعلیم، عمارات پر بڑی توجہ دی ہے۔ اس عہد میں دکن میں اردو زبان نے بھی نشو نما پائی، اسلام بھی خوب اس زمانے میں پھیلا ہوا، لیکن 1490 کے قریب بہمن سلطنت کو زوال آنا شروع ہوا اور 1538 تک اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اس بہمنی سلطنت میں آنے والے اہم حکمران کون کون تھے بچوں کر کے؟ تو یہاں پہ اس کا بانی جو تھا، بہمنی سلطنت کا بانی علاء الدین حسن گنگو بہمن شاہ ہے، جس نے 13 اگست 1347 سے بہمنی سلطنت کا آغاز کیا۔ اس کی حکومت 1358 تک رہی ہے۔ اس کے بعد آنے والا ہے محمد شاہ بہمنی اول، علاء الدین مجاہد شاہ بہمنی، اس کے بعد میں آتا ہے داؤد شاہ بہمنی، محمود شاہ بہمنی اول اور غیاث الدین شاہ بہمنی، شمس الدین شاہ بہمنی، تاج الدین فیروز شاہ بہمنی اور شہاب الدین احمد شاہ ولی بہمنی، جس کے دور حکومت میں ہی گلبرگہ سے پایا تخت کہاں منتقل ہوا تھا بچوں؟ بیدر۔ تو اس طرح سے بہت سے حکمرانوں نے جو ہے بہمن سلطنت کو یا بہمنی سلطنت سے اپنی حکومت کی ہے، گلبرگہ پھر اس کے بعد میں بیدر کو اپنا پایا تخت بناتے ہوئے۔ تو بچوں اگر ہم بہمنی سلطنت پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر بہمن خاندان کا جو مشہور وزیر تھا، بہت ہی وفادار وزیر تھا، جس کی وجہ سے بہمنی سلطنت کو 4 چاند لگ گئے ہیں، وہ ہے محمود گاواں۔ تو اس کا ذکر کرنا، اس کے بارے میں پڑھائی کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ چلو تو پھر مختصر طور پر ہم دیکھیں گے۔ تو محمود گاواں، جس کو نام جو تھا یہاں پہ خواجہ عماد الدین محمود گاواں، دکن کی بہمنی سلطنت کا وہ وزیر اعظم تھا۔ محمود گاواں کا اصل نام خواجہ محمد غیلانی تھا، یا اس کو خواجہ عماد الدین محمد گاواں بھی کہتے۔ اس کی پیدائش 1411 میں صوبہ جیلان میں، یہ جیلان کہاں پہ آتا ہے؟ ایران میں آتا ہے۔ ایران کے صوبہ جیلان کے شہر گاواں میں ہوئی تھی، اسی لیے اس کو محمود گاواں کہتے ہیں۔ کہاں سے تعلق رکھنے والا، کہاں کا شہری تھا وہ؟ ملک ایران کا۔ ایران کے صوبہ جیلان کے گاواں میں محمود گاواں کی پیدائش ہوئی، پھر وہ ہندوستان ایک سفیر کی حیثیت سے، پھر یہاں پر جو ہے اس کو شاہی درباری تک اس کی رسائی ہو گئی۔ تو گاواں، محمود گاواں جو ہے ایک عالم دین، ماہر سائنسی علوم، ماہر ریاضی، مصنف اور شاعر تھا۔ بعد ازیں محمد شاہ سوم کے دربار میں وزیر اعظم کے عہدے پر بھی وہ فائز ہو گیا ہے۔ تو عالم و فاضل محمد گاواں کو شاہی خاندان کا اعتماد بھی حاصل تھا۔ صرف مقامی حکمران ہی نہیں، دیگر سلاطین بھی محمود گاواں کی بہت ہی تعظیم کرتے تھے، لیکن چند ایک جو تھے دربار میں رہنے والے لوگ جو اس سے تعصب کرتے تھے، جنہوں نے جو ہے بادشاہ محمد شاہ سوم کے کان بھرے، کہا جاتا ہے کہ اس کا قتل کر دیا گیا ہے کر کے، کب؟ 1481 میں۔ اس کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ ہے بیدر کا مدرسہ۔ یہ جو دکھ رہا ہے بچوں آپ کو، یہ محمود گاواں کا مدرسہ ہے۔ کہاں پر ہے یہ؟
بیدر کے مقام پر. کہاں میں ہے؟ کہاں ہے بچوں؟ بیدر. تو اس کی خواہش، قیادت اور معاشی مدد سے جو ہے شہر بیدر جو اس کے زمانے میں دینی علوم کی ایک درسگاہ تھا. ایک ہے محمود گاواں کا مدرسہ ہے. تو اس دور کی اسلامیہ جامعہ مانی جاتی تھی. محمود گاواں کا جو مدرسہ تھا وہ اسلامی تعلیم کا ایک سینٹر تھا. صرف ہندوستان کے ہی نہیں، باہر کے ممالک کے بھی بہت سے شاگرد، بہت سے بچے یہاں پہ علم دین سیکھنے کے لیے، بہت سے علوم یہاں پہ، خاص کر علم دین، طب، یہ تمام علوم یہاں پہ سکھائے جاتے تھے. اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ دکن کا پہلا اسلامی جامعہ ہے، اسلامی مدرسہ ہے. اس جامعہ میں، اس مدرسے میں ایک منظم جو ہے خطب خانہ بھی اس نے بنایا تھا، جس میں 3000 سے زیادہ کتابیں رکھے ہوئے تھے. چند ایک جگہ پر 10,000 کتابوں کا بھی بچوں ذکر ملتا ہے. تو یہ مدرسہ اس زمانے میں 3 منزلہ عمارت تھی. اب اس کو ڈھا دیا گیا ہے، جو کہ 242 فٹ لمبی، 222 فٹ چوڑی اور 56 فٹ اونچی کیا تھی؟ 3 منزلہ عمارت تھی. اس کا طرز تعمیر، اس میں جو مینار، گنبد یا جو ہے یہ سمرقند کے جو تعمیرات ہیں، یعنی انڈو سارسنک طریقہ جو کہتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے یہ بنایا گیا تھا. تو بچوں یہ کیا تھا؟ محمود گاواں کا مدرسہ ہے. کون تھا محمود گاواں؟ محمد شاہ سوم کا یہ وزیر اعظم تھا. بہت سے سلطان کے درباروں تک اس کی رسائی ہوئی ہے. ایک وزیر اعظم کے عہدے تک وہ رہا ہے. لیکن جو درباری دوسرے جو یہاں پہ سپاہی، مطلب وہاں پہ دربار میں رہنے والے جو درباری تھے، اعلیٰ جو وہاں پہ لوگ رہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے ایک غیر ملکی ہے، یہ گیلان یا ایران کا رہنے والا ہے. تو اس سے وہ جلن و حسد کرتے تھے. انہوں نے جو ہے بادشاہ کے کان بھرے. تو کہا جاتا ہے کہ اس کا قتل کیا گیا ہے. کس کا؟ محمود گاواں کا، جو کہ بہمنی سلطنت کا سب سے اہم وزیر مانا جاتا ہے، جس نے بیدر میں ایک مدرسہ جو یہاں پہ دکھائی دے رہا نا وہ قائم کیا تھا، جو کہ دینی علوم کی پہلی مدرسگاہ یا درسگاہ یہاں پہ مانی جاتی ہے. تو بچوں بہمنی سلاطین کو تعمیرات میں بھی کافی دلچسپی تھی. علاؤالدین حسن سے لے کر کلیم شاہ تک سبھی سلطانوں نے بہت شاندار عمارتیں تعمیر کیے. خاص کر گلبرگہ، بیدر اور دولت آباد میں ان کے تعمیراتی مراکز تھے، محور تھے. تو بہمنی عمارتیں آرکیولوجی سروے آف انڈیا یا ریاستی آرکیولوجی سروے آف انڈیا کے یہ ماتحت ہیں. یہ تو اس میں بہت سے گلبرگہ کا قلعہ ہے، جامع مسجد ہے، یا مقبرہ علاؤالدین حسن گنگو بہم شاہ کا مقبرہ ہے، یا محمد شاہ اول کا مقبرہ ہے. اسی طرح ہفت گنبد کر کے ہے، یا خواجہ بندہ نواز گیسودراز کی جو درگاہ شریف ہے وہ ہے یہاں پہ. اسی طرح شور گنبد ہے، بیدر کا قلعہ، محمود گاواں کا مدرسہ، یا 16 کھمبا جو مسجد کہتے ہیں، تخت محل اور رنگین محل، یہ تمام جو ہے بہمنی سلاطین کے بنائے ہوئے تعمیراتی نمونے ہیں، جس میں انہوں نے انڈو سارسنک یعنی ہند افغانی طرز تعمیر کو لے کر، جس میں گنبد ہوتے ہیں، کمان ہوتے ہیں، مینارے بنائے جاتے ہیں. تو اس طرح کے طرز تعمیر کو اپناتے ہوئے انہوں نے اپنے تعمیرات بنائے ہیں. لیکن 1490 کے بعد میں جو ہے بہمنی سلطنت کا زوال شروع ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد میں جو ہے بہمن سلطنت کے خاتمے کے بعد دکن کے علاقے میں 5 نئی سلطنتوں کا آغاز ہوا. ان 5 اہم سلطنتوں میں جو ہے بیجاپور کے عادل شاہی، گولکنڈہ کے قطب شاہی، احمد نگر کے نظام شاہی، برار کے اماد شاہی اور بیدر کے برید شاہی ہیں. یعنی بہمن سلطنت کے زوال کے بعد 5 خود مختار سلطنتیں جو ہیں وجود میں، جس میں 2 سلطنتیں بیجاپور کے عادل شاہی اور بیدر کے برید شاہی کے دور میں تو زبان اور ادب کو بہت ہی سرپرستی حاصل ہوئی ہے. تو کون کون سے سلطنتیں تھے بچے؟ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ 5 نئی سلطنتیں بہمن سلطنت کے زوال کے بعد جو وجود میں آئے ہیں. بیجاپور کے عادل شاہی، چلیے آپ بھی بولیے، بیجاپور کے عادل شاہی، گولکنڈہ کی قطب شاہی، احمد نگر کے نظام شاہی، برار کے اماد شاہی، بیدر کے برید شاہی. مطلب بیجاپور کو اپنا صدر مقام بنا کر حکومت کرنے والے جو تھے ان کو ہم کیا کہتے ہیں بچوں؟ عادل شاہی. گولکنڈہ سے حکومت کرنے والے قطب شاہی اور احمد نگر کے نظام شاہی کہلاتے. برار سے اماد شاہی، بیدر سے جو حکومت کے وہ برید شاہی کہلاتے. اس طرح بہمن سلطنت کے زوال کے بعد جو ہے
5 नई सल्तनतें उरूज पर आई हैं। आदिल शाही, कुतुब शाही, निज़ाम शाही, अमाद शाही और बरीद शाही करके। तो बच्चों ये 5 सल्तनतें, चले इनके बारे में तफसीली जाने। तो अब तक जितना हुआ उतना याद रहेगा। यहाँ पे बहमनी सल्तनत का बानी, उसका आगाज कब हुआ, उसका पाया तख्त, बहमनी सल्तनत का अहम वजीर कौन था, उसका मदरसा, फिर उसके बाद बहमनी सल्तनत के खात्मे के बाद दक्कन में उरूज पर आने वाले या आगाज होने वाली 5 नई सल्तनतें। यस तलबा, इसके बारे में 1-2-4 सवालात पूछती हूँ, फिर उसके बाद में इन तमाम 5 सल्तनत के बारे में मुख्तसर पढ़ेंगे। अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो पूरा साल भी अगर इन सल्तनतों के बारे में पढ़ेंगे तो भी हमें पीरियड ना काफ़ी है, फिर भी मुख्तसर देखते चले जाएंगे। उससे पहले जो है मैं आपको चंद एक सवालात पूछती हूँ। चलिए आप रेडी हैं? ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला सवाल है आपके लिए यहाँ पे, बहमनी सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? पहला सवाल क्या है आपके लिए, बहमनी सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? चलो बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट में अपना जवाब लिखते चले जाइए। बहमनी सल्तनत की, बहमनी खानदान की बुनियाद किसने रखी? अल्हम्दुलिल्लाह, बहमनी सल्तनत की बुनियाद अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह ने रखी है, जिसको हम जफर खान भी कहते हैं ना। बिल्कुल सही जवाब अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये रहा, बहमनी सल्तनत की बुनियाद कब रखी गई, है ना। अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह ने बहमनी सल्तनत की बुनियाद कब रखी गई, यानी आपको तारीख बताना पड़ेगा, ईस्वी किस ईस्वी में जो है बहमनी सल्तनत की बुनियाद रखी गई है। माशाल्लाह 1347 सन ईस्वी में। सही जवाब, राइट आंसर, गुड। चलिए और एक सवाल आपके लिए ये रहा, बहमनी सल्तनत का पाया तख्त कौन सा था? चलिए 2 पाया तख्त मैं बोली हूँ, आप एक बोलिए, दोनों भी बोले तो बहुत अच्छा है ना। पहले 8 बादशाहों के दौर में एक पाया तख्त रहा, फिर उसके बाद में दूसरा पाया तख्त मुंतकल के जो आखिरी तक जो है उनका पाया तख्त रहा। तो कौन कौन से थे वो पाया तख्त? अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा। फिर उसके बाद में कहाँ मुंतकल होता, बीदर, जो आखिर तक उनका पाया तख्त रहा। माशाल्लाह सही जवाब, बहमनी सल्तनत का पहला पाया तख्त गुलबर्गा था, फिर उसके बाद में वो बीदर मुंतकल हो गए। चलिए और एक सवाल आपके लिए, बहमनी सल्तनत का अहम वजीर कौन था? बहमनी सल्तनत का अहम वजीर कौन था जिसके जिक्र के बिना बहमनी खानदान की तारीख अधूरी रह जाती है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब, महमूद गावा, जो कि जीलान ईरान का रहने वाला था ना। तो बहमनी सल्तनत का अहम वजीर कौन है? महमूद गावा है। सही जवाब बच्चों। और एक क्वेश्चन रहा आपके लिए, बीजापुर से हुकूमत करने वाला शाही खानदान कौन सा था? बीजापुर से हुकूमत करने वाला शाही खानदान कौन सा था? माशाल्लाह सही जवाब, आदिल शाही, है ना। आदिल शाही कहाँ के थे? बीजापुर से। बीजापुर से हुकूमत करने वाला शाही खानदान आदिल शाही। सही जवाब बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुतुब शाही हुक्मरान कहाँ के हाकिम थे? कुतुब शाही हुक्मरान कहाँ से हुकूमत करते थे, यानी कहाँ के हुक्मरानों ने कहा? जिस तरह बीजापुर के आदिल शाही कहते हैं ना, अहमदनगर के निज़ाम शाही, बिदर के बरीद शाही, अमाद शाही। हाँ चलिए कहाँ के थे? गोलकंडा के। माशाल्लाह कुतुब शाही हुक्मरान कहाँ के हाकिम थे? गोलकंडा के, है ना। बहमनी सल्तनत के बाद 5 सल्तनतें वजूद में आई थी, बीजापुर के आदिल शाही, गोलकंडा के कुतुब शाही, है ना, अहमदनगर के निज़ाम शाही, अमाद यानी बरीद जो है अमाद शाही, उसके बाद में बीदर के बरीद शाही। इस तरह से 5 सल्तनतों का आगाज हो गया था। तो चलिए बच्चे इन सल्तनतों के बारे में मुख्तसरन हम थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे भी। तो सबसे पहले देखिए, सन 1492 ईस्वी में कासिम बरीद अव्वल ने सल्तनते बिदर की बुनियाद रखी। कासिम बरीद इस्लाहन वो क्या था? तुर गुलाम था। तो पहले अव्वल में वो बहमन शाह सुल्तान यानी बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह सुवम के दरबार से वो मुंसलिक था, वहां पर रहता था। उसको वहां पे सरनौबत यानी सिपे सालार के अहदे को उस वक्त क्या कहते थे? सर नौबत कहते थे। तो उस अहदे पर वो फायज था, कौन? कासिम बरीद। लेकिन कुछ अरसे या कुछ दिनों के बाद में उन्हें बहमनी सल्तनत का मीर जुमला यानी वजीर आजम बना दिया गया। पहले वो एक सिपह सालार था, फिर उसकी तरक्की हो गई, उसकी वफादारी को देखकर वहां पर उसको मीर जुमला यानी वजीर आजम बनाया गया।
तो महमूद शाह बहमनी के अहदे हुकूमत में कासिम बरीद का सितारा इकबाल निहायत उरूज पर था, यानी बहुत ही तरक्की पर था, उसका आला अहदे से और बहुत उसने नवाजता था। तो अमलन बहमनी सल्तनत के सियाह व सफ़ेद का वो मालिक बन गया। इस तरह से वो उसका एतमाद जीतते हुए खुद बहमनी सल्तनत को अपने अंडर में करता चला गया। और सन 1504 ईस्वी में इसकी वफात के बाद इसका फर्जंद अमीर बरीद अव्वल मीर जुमला के मुनसब पर फाइज हुआ, लेकिन बहमन सुल्तान के मुख्तार कुल वो बने रहे। कौन? बरीद शाही। कहाँ के थे बच्चों? बीदर के। बीदर से हुकूमत करने वाला खानदान कौन सा कहलाता? बरीद शाही। तो इसकी बुनियाद 1492 ईस्वी में किसने रखी थी? कासिम बरीद ने। किसने रखी थी बच्चों? कासिम बरीद अव्वल ने 1492 ईस्वी में बीदर को अपना सदर मुकाम बनाते हुए कासिम बरीद अव्वल ने बीदर के बरीद शाही खानदान की बुनियाद रखी थी। लेकिन 1619 ईस्वी में सुल्तान बीजापुर कौन? इब्राहिम आदिल शाह दुआम ने अमीर बरीद को शिकस्त दी और बाद बीदर सल्तनत बीजापुर में जम हो गई और बीदर के बरीद शाही जो थे वो बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत में जम हो गए, उसमें शामिल किया गया और अमीर बरीद सुवम और इनके फर्जंदों को बीजापुर ले जाया गया, जहां वो सब नजर बंद करके भी उनको रखे गए थे। तो एक कौन थे बच्चों? बीदर के बरीद शाही, जिसकी बुनियाद कासिम बरीद अव्वल ने 1692 ईस्वी में रखी थी। लेकिन बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह दुआम के दौरे हुकूमत में जो है इनका जवाल हो जाता है। अमीर बरीद सुवम जो के बरीद शाही हुकूमत का एक हुक्मरान हो गुजरा, उसको और उसके फर्जंदों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बीजापुर में जम हो जाता है और वो उनको वहीं पर कैद कर ले जाकर वहीं पर वो नजरबंद कर देते हैं। चलिए अब दूसरा खानदान हम पढ़ेंगे। कौन सा बच्चों? बरार के अमाद शाही। सल्तनत बरार या अमाद शाही सल्तनत दक्कन की सल्तनतों में से यानी जनूबी हिंदुस्तान की सल्तनतों में से एक अहम सल्तनत थी, जो कि बहमनी सल्तनत के बिखरने के बाद सन 1490 में जब बहमनी सल्तनत का जवाल शुरू हुआ तो उस वक्त जो है बरार से अमाद शाही सल्तनत का आगाज हो गया था। तो बहमनी सल्तनत के सुकूत के वक्त यानी उनके जवाल के वक्त ही 1490 ईस्वी में बरार के साबिक गवर्नर फतेहुल्लाह अमादुल मुल्क ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया और सल्तनत बरार के अमाद शाही सिलसिले की बुनियाद रखी। किसने? फतेहुल्लाह अमादुल मुल्क ने। कब? बहमनी सल्तनत के जवाल के बाद यानी 1490 में। नेज अपनी नई तश्कील शुदा सल्तनत में माहिर को भी उसने जम कर लिया और एलिचपुर को वो अपना फिर उसके वो पाया तख्त बनाया। लेकिन सन 1504 ईस्वी में अमादुल मुल्क का इंतकाल हो गया और अलाउद्दीन उनके जानशीन बने। अलाउद्दीन ने अपने अहद में सुल्तान गुजरात बहादुर शाह की मदद से अहमदनगर के हमलों की मज़ाहमत भी की थी। तो ये मुख्तसर तौर पर बच्चों किसके बारे में है? बरार के अमाद शाही। बरार के अमाद शाही जिसका बानी कौन था? फतेहुल्लाह अमादुल मुल्क ने क्या की थी? अमाद शाही सल्तनत की बुनियाद डाली थी। बरार के अमाद शाही सल्तनत की बुनियाद डाली थी। तो पहले कौन से पढ़े हम लोग? बीदर के बरीद शाही, फिर उसके बाद में बरार के यहाँ पे अमाद शाही, है ना। तो उसी तरह से और एक सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ये है अहमदनगर के निज़ाम शाही। अहमदनगर से हुकूमत करने वाले निज़ाम शाही हुक्मरान। तो अहमदनगर सल्तनत जो है, जिसे हम निज़ाम शाही सल्तनत भी कहते हैं या अहमदनगर के निज़ाम शाही कहा जाता है, तो मुल्क अहमद जो बहमनी सल्तनत का गवर्नर था 28 मई 1490 को बहमनी अफवाज को शिकस्त देकर आज़ादी का ऐलान किया और निज़ाम शाही हुकूमत की बुनियाद बतौर अहमदनगर सल्तनत के रखी थी। किसने बच्चों? मुल्क अहमद ने, जो पहले क्या था? बहमनी सल्तनत का गवर्नर था। तो उसने 28 मई 1490 को बहमनी अफवाज को शिकस्त देकर, वो खुद एक गवर्नर था लेकिन अपनी फौज को मजबूत करते हुए उन्हें शिकस्त देकर आज़ादी का ऐलान किया और अपनी ये खुद मुख्तार सल्तनत की बुनियाद डाली, जिसको हम अहमदनगर के निज़ाम शाही हुक्मरान
कहते हैं। तो इब्तिदा में इनका दारुल हुकूमत या इनका सदर मुकाम जनार था। फिर 1494 ईस्वी में नया दारुल हुकूमत या नया सदर मुकाम उन्होंने अहमदनगर को बनाया था। कौन बच्चों? अहमदनगर के निज़ाम शाही। तो इस तरह से निज़ाम शाही हुक्मरान को हम अहमदनगर के निज़ाम शाही हुक्मरान कहते हैं। लेकिन 1636 ईस्वी में औरंगजेब जो उस वक्त दक्कन का गवर्नर था, अहमदनगर सल्तनत को फतह किया और मुगलिया सल्तनत में उसको शामिल कर दिया। किसको? अहमदनगर के निज़ाम शाही हुक्मरानों की अहमदनगर सल्तनत को मुगल हुक्मरान औरंगजेब ने अहमदनगर को फतह करते हुए अहमदनगर को मुगलिया सल्तनत में शामिल कर दिया। तो बच्चों अभी 3 हो गए, बीदर के बरीद शाही, उसके बाद अमाद शाही, अहमदनगर के निज़ाम शाही। चलिए और एक देखते हैं हम। तो उससे पहले जो है बरीद शाही हुकूमत में या निज़ाम शाही हुकूमत में आने वाले चंद एक हुक्मरानों की यहाँ पे फहरिस्त है। इसको भी आप अपनी नोटबुक्स में दर्ज कीजिए। कौन कौन है यहाँ पे? मुल्क अहमद निज़ाम शाह अव्वल, बुरहान निज़ाम शाह अव्वल, हुसैन निज़ाम शाह अव्वल, मुर्तज़ा निज़ाम शाह, फिर मीर निज़ाम हुसैन, इस्माइल निज़ाम शाह, बुरहान निज़ाम शाह दुआम, इब्राहिम निज़ाम शाह, अहमद निज़ाम शाह दुआम, बहादुर निज़ाम शाह, मुर्तज़ा निज़ाम शाह दुआम, बुरहान निज़ाम शाह सुवम, हुसैन निज़ाम शाह दुआम। इस तरह से बहुत से हुक्मरानों ने अहमदनगर से अपनी निज़ाम शाही हुकूमत को की है, जिन्हें हम अहमदनगर के निज़ाम शाही हुक्मरान कहते हैं। चलिए अब चौथी देखेंगे, गोलकुंडा के कुतुब शाही। गोलकुंडा के कुतुब शाही, तो कुतुब शाही हुक्मरान जिसे गोलकुंडा के कुतुब शाही भी कहते हैं, तुर्क सल्तनत को जो कि फ़ारसी सकाफ़त से भी ये मुतासिर थे। इन सलातीन को मजमूई तौर पर हम क्या कहते हैं? कुतुब शाही कहा जाता है। एक ख़ानदान जो थे, ये सल्तनत गोलकुंडा की रियासत के हुक्मरान थे, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? गोलकुंडा के कुतुब शाही हुक्मरान कहते हैं। तो इनमें कौन कौन थे? सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क, जमशीद कुली कुतुब शाह, सुबहान कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, अबुल हसन कुतुब शाह। तो इसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह एक बहुत बड़े बुजुर्ग भी हो गुजरे हैं। तो एक कौन थे बच्चों? गोलकुंडा के कुतुब शाही, है ना। 4 सल्तनतें पढ़े हम, बीदर की बरीद शाही, अमाद शाही, अहमदनगर के निज़ाम शाही और गोलकुंडा के कुतुब शाही। चले और एक आखिरी सल्तनत अब पढ़ेंगे जो बहुत ही अदब फने संग तरासी में आलमी शोहरत हासिल की हुई सल्तनत है। वह है बीजापुर के आदिल शाही। बीजापुर के आदिल शाही, जिन्होंने अपने फने तामीरात, अपने अदब के, अपनी शायरी में जो है आलमी शोहरत, आलमगीर शोहरत उन्होंने हासिल किए हैं। तो बीजापुर के आदिल शाही जनूबी हिंदुस्तान के मगरबी इलाके ने बीजापुर से हुकूमत की है। 1490 से लेकर 1886 सन ईस्वी तक बीजापुर के आदिल शाही हुक्मरानों की हुकूमत रही है ना। बीजापुर जो है जवार और रुई की तिजारत का बहुत मरकज़ है। बीजापुर कहने के साथ ही हमारे दिमागों में पहली छवि कौन सी आती है? इसी तस्वीर की, है ना, गोल गुम्बद, बोली गुम्बद या गोल गुम्बद जिसको हम कहते हैं। एक कौन थे? बीजापुर के आदिल शाही। तो बीजापुर के आदिल शाही अहम हुक्मरान कौन कौन हो गुजरे हैं यहाँ पे? इसका जो बानी था यूसुफ आदिल शाह, उसके बाद उसका बेटा इस्माइल आदिल शाह, उसके बाद मालो आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह अव्वल, अली आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह दुआम, मोहम्मद आदिल शाह, अली आदिल शाह दुआम, सिकंदर आदिल शाह। इस तरह से बहुत से आदिल शाही हुक्मरानों ने बीजापुर से अपनी हुकूमत की है और अपने फ़ने संग तरासी की वजह से आलमी शोहरत, आफाकियत उन्होंने हासिल की है। तो चलो बच्चों इनके अहम तामीरात को भी देखेंगे और एक नज़र इनके अदबी खिदमात पर। तो इन तमाम सल्तनतों में जितने अब हम पढ़े ना, कुतुब शाही, अमाद शाही, निज़ाम शाही,
बरीद शाही। तो इन तमाम सल्तनतों में बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही सल्तनतों ने दक्कनी जुबान और शायरी की सरपरस्ती का हक अदा किया है ना। इससे पहले भी बोली कि इन पांचों में दो बहुत ही अहम थे। उन दोनों में कौन कौन से हैं? बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत, गोलकुंडा की कुतुब शाही सल्तनत। इस दौर में न सिर्फ शायरी को तरक्की हुई बल्कि खुद आदिल शाही सल्तनत के दो बादशाह इब्राहिम आदिल शाह और अली आदिल शाह दुवम ने दक्कनी में शायरी की रिवायत की भी फरोग हासिल। बहुत से गज़लें भी हम पढ़ते हैं हमारी क्लासिकल गज़लों में। अली आदिल शाह दुवम, अली आदिल शाह शानी जिसको हम कहते हैं, उसका एक कारनामा था कि वो अपने दरबार के नामो शोरा को खिताब पे मुल्कुल शोरा से वो सरफराज फरमाया था। आदिल मोहम्मद नसरती को दरबार का सबसे आला शाही बादशाहों के खिताबात से, शोरा को बहुत से खिताबात से भी उन्होंने नवाजे। यानी वो इल्म के, शायरी के बहुत बड़े कदरदान हो गुजरे हैं और फ़न तामीरात पर उन्होंने खुसूसी ध्यान दिए है, खुसूसी तवज्जो दी है, जिसकी वजह से वह आफाकियत, आलमी शोहरत उन्होंने हासिल किया। इस दौर की मशहूर इमारतों में जो है यहाँ पे बीजापुर की जामे मस्जिद, इब्राहिम रोज़ा, गोल गुम्बद है ना, इस तरह की बहुत सी इमारतें हैं जो हम मुख्तसरन अब एक एक देखते चले जाएंगे। तो बादशाहों ने अवाम को हर किस्म की सहूलतें भी फराहम की। इनकी रिहाइश और रोज़गार के अलावा जो है सेहत और अवामी ज़िंदगी की सहूलियात को महफूज करने, उनकी देखभाल करने, ज़राअत को तरक्की देने, आबपाशी हो या उनको जो है अकामत गाहें फराहम करने के लिए, तो बहुत ही फराग दिल हुक्मरान बीजापुर के आदिल शाही हुक्मरान हो गुजरे हैं। तो इनके फ़न तामीरात के नमूने सबसे पहले हमारे दिमाग में आने वाला कौन सा? बीजापुर का गोल गुम्बद, जिसको चंद लोग बोली गुम्बद भी कहते हैं ना, आवाज़ की इको होने की वजह से। तो ये है बच्चों, एक है 7 मंजिला जो इमारत है, यानी इसके जो 4 पिलर मीनार दिखा रहे हैं उसमें कितनी मंजिलें हैं बच्चों? 7 मंजिलें हैं ना। आप में से अक्सर लोग गए हैं ना बीजापुर, बहुत से लोग जा चुके अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो ये 7 मंजिला, यानी 7 यहाँ पे मंजिलें हैं उन मीनारों की, है ना, चारों तरफ जो मीनारें हैं। तो बीजापुर में वाक़ा गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इस मकबरे की तामीर 1626 सन ईस्वी में शुरू हुई थी और 1656 सन ईस्वी में इसकी तकमील हो गई, यानी पूरा मुकम्मिल हो गया। ये हिंद इस्लामी फ़न तामीर के अंदाज की पैरवी करता है। हिंद इस्लामी तर्ज तामीर में क्या होता था बच्चों? ये गुम्बद होते थे, कमान होते थे, मीनारे होते थे, झरोके होते थे, है ना, गैलरीज जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह का फ़न तामीर जो था वो हिंद इस्लामी फ़न तामीर के इंडो सार्सनिक तर्ज तामीर भी उसको कहते हैं। तो ये जो गोल गुम्बद आपको दिखाई दे रहा है वो 51 फीट ऊंचा है और 18,000 मुरब्बा फीट के इहाते में फैला हुआ है। चारों कोने में देखो इसके 4 यहाँ पे मीनारे दिखाई देते हैं जो कि 7 मंजिला हैं। और इसकी गैलरी में ऊपर जब हम गुम्बद पे 7 मंजिल तय करके ऊपर जब पहुंचते हैं और इसके गैलरी में खड़े होकर हमें किसी एक तरफ से हल्की सी हम सरगोशी करते हैं तो उसके अपोजिट साइड में वो आवाज़ हमें सुनाई देती है। और तालियों की गूंज जब एक होती है तो जो है 7 मरतबा भी सुनाती है। इसको हफ्त गुम्बद भी कहते हैं, इसको बोली गुम्बद भी कहते हैं। आवाज़ या बोल का जो है बार बार यहाँ पे क्या होता है? इको होता है, यानी गूंजती है। तो बच्चों ये क्या था? बीजापुर का गोल गुम्बद, है ना। तो उसी तरह से दूसरी इमारत है, एक कौन सी है पहचानते हो? बोल सकते हो बच्चों एक कौन सी इमारत है? बहमनी विजयनगर सल्तनत के आगाज में ही सल्तनत, इस इमारत का नाम बोलते ही हम अपने पहले पार्ट की इब्तिदा किए थे। यस, इब्राहिम रोज़ा। ये क्या है बच्चों? इब्राहिम रोज़ा है ना। इब्राहिम रोज़ा इब्राहिम आदिल शाह दुवम की खबर या मकबरा है, जिसमें अपने 2 बेटों और उसकी माँ के साथ इन्हें दाएं बाएं जानिब वो मदफून है। वहाँ पे एक मस्जिद है, खूबसूरत बाग है, एक दिलकश वहाँ पे एक तालाब है। तो सन 1627 सन ईस्वी में इब्राहिम आदिल शाह ने इसको मुकम्मिल किया। ये मकबरा 13 मीटर के मुरब्बा नुमा शक्ल में है, ऊपर जो गुम्बद और छत को मुड़े हुए अतराफ के साथ में 9 वहाँ पे चौकोर में उसको तकसीम किया। एक शानदार बीजापुर की एक बहुत ही एक शानदार इमारत है जिसमें मस्जिद भी है, वो एक मकबरा है, कई वहाँ पे महराब हैं, हाल हैं और इतना जो है एक ताज पोश वहाँ पे गुम्बद भी है जैसा आपको दिखाई, ऐसा लगता है कि वो ताज वहाँ पे रखा हुआ है करके। तो इब्राहिम रोज़ा भी बीजापुर के आदिल शाहों के शानदार इमारत है। तो उसी तरह से बच्चों 12 कमान है ना, ये भी आप देख चुके होंगे। बीजापुर की एक अहम तारीखी इमारत कौन सी है? ये
बारा कमान है ना। बारा कमान 1627 सन ईस्वी में अली आदिल शाह दुगम ने तामीर किया था और समझा जाता है कि बादशाह और उसके बीवियों को वहाँ के तदफीन करने के लिए मकबरों का भी वो इंतज़ाम किया था। तो बारा कमान में अली आदिल शाह दुगम, उनकी अहलिया चांद बीबी, उनकी मालकिन, उनकी बेटियों की भी कब्रें वहाँ पे हैं। तो ये बारा कमान का मार, इसको तामीर करने वाला कौन था? मुल्क संदल था, उसने बारा कमान की तामीर किया है ना बच्चों। यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना कमान, इसको हम क्या कहते हैं? बारा कमान कहते हैं। तो उसी तरह से जामिया मस्जिद है ना, दक्कन की जो सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है जामिया मस्जिद है, बीजापुर की जामिया मस्जिद अली आदिल शाह अव्वल ने बनाई थी, यानी 1565 सन ईस्वी में जब विजयनगर सल्तनत और दक्कन के सलातीन ने मिलकर जो है तालीकोटी के मुकाम पर तालीकोटी की जंग, या जिसको हम रक्कस तंगड़ी की जंग कहते हैं, जिसमें जो है कृष्ण देवराय का दामाद अली आराम राय को शिकस्त हुई थी, वो मारा गया था। तो उसकी फतह के बाद जो है बीजापुर की जामिया मस्जिद की तामीर की गई है। उसी तरह से एक कहलाता है बच्चों मुल्क मैदान तोप, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? मुल्क मैदान तोप कहते हैं ना, ये बड़ी तोप देखे ना बीजापुर जो गए हैं। उसी तरह से बच्चों और दूसरी इमारतें आसार महल, उसी तरह से जो है बे गगन महल है, किला यहाँ पे बीजापुर में पाए जाने वाला किला है, कई एक मशहूर मनादिर भी उस ज़माने में बनाए हुए हैं। उसी तरह से आसार महल, गगन महल है ना, ललित महल, बहुत से यहाँ पे महलात हैं और इसके साथ साथ बहुत से किले भी वहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये तमाम क्या थे बच्चों? बीजापुर के अहम इमारतें हैं, है ना, जो कि इंडो सार्सनिक तर्ज तामीर को अपनाते हुए बनाए गए हैं, जिसमें कमान, गुंबद, मीनारों का, झरोकों का, खिड़कियों का यहाँ पे हमें एक नादिर व शादिर नमूना हमें दिखाई देता। तो बच्चों ये थे सलातीन दक्कन। कौन थे? सलातीन दक्कन। कौन कौन? बीजापुर के आदिल शाही, गोलकंडा के कुतुब शाही, बरार के अमाद शाही, बीदर के बरीद शाही और अहमदनगर के निज़ाम शाही, है ना। 5 सल्तनतें हो गुजरे। कौन कौन से बच्चों? चलो फिर से एक मरतबा बोलिए आप। अहमदनगर के निज़ाम शाही, बीजापुर के आदिल शाही, बरार के अमाद शाही, बीदर के बरीद शाही, गोलकंडा के कुतुब शाही, है ना। तो चलिए बच्चों, ये था आज का हमारा बाब विजयनगर सल्तनत और बहमनी सल्तनत का दूसरा हिस्सा। और एक हिस्सा बाकी है, हम अगली क्लास में करेंगे। उससे पहले बच्चों चलिए आज अपना होमवर्क लिख लीजिए। मश्क में जो अभी सवालात पहले पूछी मैं, वो तमाम सवालात भी लिखिए और ये होमवर्क के सवालात भी हल कीजिए। पहला सवाल आपके लिए है, बहमनी सल्तनत के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। उसका आगाज़ किसने किया, अहम सुल्तान वहाँ पे कौन कौन हो गुजरे हैं, उनका पाया तख्त कौन सा था। तो मुख्तसर लिखिए, बहमनी सल्तनत के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। दूसरा सवाल बच्चों आपके लिए, महमूद गावान के हालात ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए। मतलब उसकी पैदाइश, वतन, फिर किस तरह हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान में उनका बीदर के मुकाम पर महमूद गावा का मशहूर बीदर का मदरसा, ये तमाम आप लिखेंगे। तीसरा सवाल आपके लिए, बहमनी सल्तनत के ज़वाल के बाद जुनूबी हिंदुस्तान में उरूज पर आने वाली 5 सल्तनतें कौन कौन सी हैं। 5 सल्तनतों के नाम लिखिए, अच्छे से स्केच में इसको निकालिए। उसी तरह से अहमदनगर के निज़ाम शाही और गोलकंडा के कुतुब शाही हुकूमत के अहम बादशाहों की फहरिस्त बनाइए। अहमदनगर के निज़ाम शाही और गोलकंडा के कुतुब शाही हुकूमत के अहम बादशाहों की फहरिस्त बनाइए। एक और आपके लिए सवाल यहाँ पे, आदिल शाही हुक्मरानों के फ़न तामीरात का जायज़ा लीजिए। अभी तक मैं सभी फ़न तामीरात दिखे, तो किस तरह से तामीर को लेकर वो फ़न तामीरात बनाते थे और उनके अहम फ़न तामीरात कौन कौन से हैं, यहाँ पे एक फहरिस्त बनाते हुए उनके बारे में मुख्तसरन लिखेंगे। और एक आखिरी आपके लिए सरगर्मी है, सलातीन दक्कन के तमाम नादिर फ़न तामीरात का रंगीन एल्बम एक सरगर्मी के तौर पर बनाएंगे ना बच्चों। यहाँ पे गोल गुम्बद, इब्राहिम रोज़ा,
پھر اس کے بعد میں گولکنڈہ کا محل ہے یہاں پہ، وہاں کے قلعے ہیں، بیدر کا مدرسہ ہے نا. تمام تصاویر تو آپ اس ویڈیو لیسنس میں دیکھ ہی چکے ہیں. تو یہ سلاطین دہلی کی تمام جو نادر و شادر جو عالمی شہرت یافتہ جو فن تعمیرات کے نادر نمونے ہیں یہ، تو ان کا ایک رنگین البم ایک سرگرمی کے طور پر بنائیں گے. تو بچوں یہ تھا وجے نگر سلطنت اور بہمنی سلطنت کا دوسرا حصہ. تیسرا حصہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے. چلے تب تک اپنی پڑھائی کو جاری رکھیے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے. چلے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرا و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ.